students, how are you? Today we'll not study any topic. First of all, I'll explain you new revised syllabus issued by CBSE for session 2020-21. Very important. Eagerly waiting for this. The CBSE released this. I'll explain. I'll explain the syllabus released by CBSE for 10th class, and subject I'll take as a science subject. Okay. I'll explain one by one which chapter, what is the weightage, and which particular topic they have deleted. Topic they have deleted or entire chapter they have deleted now. So I'm starting first with science weightage, right? Subject science, code 086. I'm talking about tech class 10th. And सबसे पहले मैं आपको समझा देती हूँ weightage. The mark weight is very important. Your collective question paper is of 80 marks. First unit, the chemical substances, nature and behavior, is of 26 marks. Second, the world of living is of 23 marks. Natural phenomenon of 12 marks. Effect of current is of 14 marks. Natural resources of 5 marks. Total 80. It is about theory. An internal assessment is of 20 marks. 80 and 20, the total 100 marks for this. Okay, so this is about the weightage. Now, one by one, we'll study which particular syllabus or the topic CBSE given us to study. So these are the topics we have to do to get good marks, because CBSE prescribed this syllabus for the science student class 10th. Now, the first unit is the chemical substances, nature and behavior. Now, what is the syllabus? Chemical reactions, chemical equations, balanced chemical equation, implications of balanced chemical equation, types of chemical reactions, combinations, decomposition, displacement, double displacement, precipitation reaction, neutralization reaction, oxidation and reduction reaction. इस पूरे चैप्टर में दिस इज योर चैप्टर 1. कोई चेंज नहीं हुआ है. आपको चैप्टर 1 कंप्लीटली करना है. आई नो, बिकॉज क्लास 10 में जनरली हम इस चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, तो आप अच्छे से कर भी चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब बात करते हैं केमिस्ट्री के चैप्टर 2. चैप्टर 2 इज द एसिड बेसिस एंड सॉल्ट. दिस इज चैप्टर 2. हियर वी हैव the definitions in terms of furnishing H ion and OH ions, general properties, examples and uses, concept of pH scale, definition that is relating the logarithm, not required. That means क्लास 11th वाला जो लॉग वाला पोर्शन pH लॉग वाला है वो यहाँ नहीं करना है, पर बिल्कुल ऐसा नहीं कि हम करेंगे नहीं. क्लास 11th में हम इसको डिटेल में करेंगे. यहाँ जनरल pH स्केल एंड अबाउट द कैलकुलेशंस नहीं है. यहाँ पर importance of pH in everyday life, preparation and the uses of sodium hydroxide, bleaching powder, baking powder, washing soda and plaster of Paris. This is all about chapter 2. Nothing they have changed in this chapter. We have to do this chapter as such as is it given in NCERT. तो इसमें भी कोई चेंज नहीं किया है इन्होंने. Now next chapter is the lengthiest one in chemistry. I'm talking about metals and non-metals. दो कार्बन्स कंपाउंड इक्वली लेंथी है, लेकिन हम अभी बात करें मेटल्स नॉन मेटल्स की. बट इसमें से कुछ टॉपिक्स डिलीट हो गए हैं. बिल्कुल जैसे मैं पहले ये बता देती हूँ कि क्या पढ़ना है आपको, उसके बाद वीडियो के लास्ट में मैं एक्सप्लेन करूंगी कि कौन से टॉपिक्स किस चैप्टर से नहीं करने हैं. चैप्टर 1 में कोई चेंज नहीं है, चैप्टर 2 में कोई चेंज नहीं है. अब आते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पे. प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, रिएक्टिविटी सीरीज, फॉर्मेशन and the properties of ionic compound, and your chapter is over here. That means chapter 3 कहने के लिए है हमारे पास, और इसके सिलेबस में यही टॉपिक्स हम सिर्फ करेंगे जो हमें दिया है. प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, रिएक्टिविटी सीरीज, फॉर्मेशन एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द आयनिक कंपाउंड. Now next is the carbon compound.
This is very very important chapter. You can say the base of organic chemistry. Like in students, this time CBSE changed a lot about this chapter. What they have done: covalent bonding in carbon compound, its versatile nature and homologous series, rest the nomenclature about alcohol, acids, soap, detergents, all the topics they have deleted from this chapter. तो ये बहुत छोटा सा चैप्टर आपका हो गया है. पहले मेटल नॉन मेटल और कार्बन्स कंपाउंड लेंथीएस्ट होते थे, तो शायद सीबीएसई ने इसलिए इसको कट कर दिया यहाँ से कि डेफिनेटली ये आप क्लास 11th में तो पढ़ने ही वाले हैं. नाउ नेक्स्ट आपका ये आपका चैप्टर 4 हो जाता है. केमिस्ट्री का चैप्टर 4 अभी है आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, अर्ली अटेम्प्ट्स एट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जो बोर्नियर, ट्रायड, न्यूटन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, कार्टेशियन प्रॉपर्टीज एंड वैलेंसी, एटॉमिक नंबर, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज. तो इसमें आपका जो चैप्टर 5 है कुछ भी ऐसा लग नहीं रहा है कि बहुत मेजर कुछ चेंज है. तो यहाँ पर डेफिनेटली अब मैं आपको बता दूं चैप्टर 1 2 एज सच जैसा था वैसा ही आप पढ़ेंगे. जो आपके लेंदी चैप्टर मेटल नॉन मेटल और कार्बन्स कंपाउंड थे उसमें काफ़ी सारे आपके ऐसा बोलिएगा तो आप मेजर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे या लेंदी टॉपिक्स थे वो सीबीएसई ने इस बार आपके लिए कट कर दिए हैं, तो वो आपको नहीं पढ़ने की जरूरत है. तो ये पूरा सिलेबस हमारा हुआ केमिस्ट्री का. इस शीट के अलावा केमिस्ट्री का कोई टॉपिक हमें नहीं करने की जरूरत है. ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं थोड़ा सा और देखते हैं हम द वर्ल्ड ऑफ लिविंग में. अब यहाँ पर आ जाता है आपका बायोलॉजी के बारे में. बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ने की जरूरत है? तो बायोलॉजी में आपका आता है लाइफ प्रोसेसेस, लिविंग बीइंग, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन, प्लांट्स एंड एनिमल्स. नो चेंज. The complete chapter you already have done. I hope most of you have. इसमें कोई चेंजेस नहीं किए हैं सीबीएसई ने. एज सच आपको ये दे दिया है पढ़ने के लिए. अब बीच में एक गैप आ जाता है बेटे. यहाँ पे चैप्टर 2 होता था हमारा कार्बन आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. यहाँ पे था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो इस समय हमें नहीं दिख रहा है. इसका मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पूरी तरह से हटा दिया गया. तो आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर 2 बायोलॉजी का नहीं करना है. दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस नाउ. अब देखते हैं रिप्रोडक्शन में क्या करना है. रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, एसेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ नीड्स, मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, सेफ सेक्स वर्सेस HIV एंड एड्स, चाइल्ड बेयरिंग, द वुमेन्स हेल्थ. ये आपका सिलेबस यहाँ पर भी कम हुए. टॉपिक्स स्पेसिफिकली मैं आपको बताऊंगी रिप्रोडक्शन में, लेकिन रिप्रोडक्शन चैप्टर इंटैक्ट है आपका यहाँ पर. अब बात करते हैं हेरिडिटी. हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में आपका जो बड़ा मेजर पोर्शन होता था वो उसको बहुत बहुत कम करके आपको दे दिया बेटा. You will study about definition, the Mendelian contribution in genetics, law of inheritance of traits, sex determination, and brief introduction of these sex determination, not the detailing in the graph will not there. In that ways you'll see कि आपका जो चैप्टर है बायोलॉजी का वो भी कितना, अगर मैं यहाँ पर ही बात करूँ तो रिप्रोडक्शन आपका 3rd हो जाता है, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन आपका 4th चैप्टर है, जिसमें से टॉपिक इसमें से भी मेजर आपका चंक कम किया है. चैप्टर 2 किया ही नहीं, चैप्टर 1 में कोई चेंजेस नहीं करें. देन उसके बाद आपका चैप्टर 3 का इंट्रोडक्टरी पोर्शन उन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है. लेकिन हमको क्या करना है, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि हमको सिर्फ वही टॉपिक जो इसमें दिए हैं, जो मैंने अंडरलाइन करे हैं, वही हमें प्रिपेयर करने हैं फॉर आवर बोर्ड एग्जाम फॉर दिस सेशन. अब आगे चलते हैं और देखते हैं नेचुरल फिनोमेनन के बारे में. तो यहाँ पर आपका है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कर्व्ड सरफेसेस. रिफ्लेक्शन है यानी लाइट के बिगनिंग और हमारा कुछ इसके अंदर से नहीं कटा है. Then images formed by the spherical mirror, center of curvature, principal axis, principal focus, focal length, mirror formula, derivations not required, derivation नहीं करेंगे हम, and magnification. तो 2 formulas आपको करने हैं लेकिन फॉर्मूला की डेरिवेशन आपको यहाँ पे नहीं करनी है. रिफ्रैक्शन में लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप करेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंस करेंगे, इमेजेस फॉर्म बाय स्फेरिकल लेंस करेंगे, लेंस फॉर्मूला,
Derivation again not required. Magnification the power of lens. चलिए उसके बाद क्या है आपके यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म. दैट इज सेकंड चैप्टर आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ. सेकंड चैप्टर ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड. उसमें से बेटा बहुत सारे इन्होंने आपका सिलेबस कम कर दिया है. डिस्पोजन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एप्लीकेशन इन द डेली लाइफ. इसमें जो आपके डिफेक्ट्स या डिफेक्ट के क्योर होते थे, ह्यूमन आई का डायग्राम होता था, वो अब आपके सिलेबस में नहीं है. तो यहां से यहां तक की अगर हम बात करें, चैप्टर 1 है जिसे लाइट के नाम से आप पढ़ेंगे, उसमें कुछ खास चेंजेस नहीं है. लेकिन चैप्टर 2 में हार्डली कुछ है आपके पास पढ़ने के लिए. तो ये फंडामेंटल है, सिर्फ आपका बेसिक डिफेक्ट्स आपके, उनके क्योर और ह्यूमन आई, ये सब आपका इसमें नहीं है अभी. अब थोड़ा सा आगे आ जाते हैं और देखते हैं यहाँ पर हाउ थिंग्स वर्क. आपका इफेक्ट ऑफ करंट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे. बेटा इफेक्ट ऑफ करंट पे हमें ये देखने की जरूरत है यहाँ किस तरीके से आपका चेंजेस हुआ है किसमें, बाकी के बचे हुए चैप्टर्स में. लाइक जैसे आपका ये करंट, इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ, resistance, resistivity, factors on which the resistance of a conductor depends, series combination of resistor, parallel combination of resistor and its application in daily life, heating effect and the electric current and its application in our daily life. Electric power, interrelation between P, V, I and R, यानी आपका सब ये आपका पावर में या फिर पोटेंशियल डिफरेंस है या फिर आपका करंट है या फिर रेजिस्टेंस में रिलेशन. यहां तक आपका मुझे कुछ चेंज नहीं नजर आ रहा है. पूरा इलेक्ट्रिक करंट हमें पढ़ना ही है. नेक्स्ट आपका इससे रिलेटेड आ जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. अब देखते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में क्या है. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर, field due to current carrying coil or the solenoid, force on the current carrying conductor, Fleming's Lambton rule, electric motor, electric induction and induced potential difference, induced current and the Fleming's right hand rule. See, यहाँ पे आपका मोटर और जनरेटर दोनों जो बेसिक आपके डायग्राम्स थे वो हटा दिए आपके सिलेबस से. सिर्फ बेसिक्स रह गए हैं इस चैप्टर के भी. यहाँ पे आपका आपको मोटर नहीं करने की जरूरत है ना. इलेक्ट्रिक मोटर सिर्फ प्रिंसिपल आपको करने की जरूरत है और इलेक्ट्रिक जनरेटर हमें करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है. उसके बाद आता है कि और क्या करना है हमें. चलिए देखते हैं कुछ नेचुरल रिसोर्सेज में. तो नेचुरल रिसोर्सेज में आर एनवायरमेंट, इकोसिस्टम, environmental problems, ozone depletion, waste production and the solution, biodegradable and non-biodegradable substances. ये सब हमें नेचुरल रिसोर्सेज में करना है बेटा. ये था हमारा सिलेबस. अब बात करते हैं थोड़ी सी इंटरनल असेसमेंट के बारे में. मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देती हूँ, थोड़ा सा आपको बता देती हूँ. यहाँ पर learners are assigned to read below the list part of the unit 5. तो लिस्टेड पार्ट कौन सा है यूनिट 5 का, मैं बताती हूँ आपको किस पोर्शन की ये बात कर रहे हैं. दे कैन बी इनकरेज टू प्रिपेयर अ ब्रीफ राइट अप. आपको टीचर आपकी पूछ सकते हैं यहाँ पर, और एनी कॉन्सेप्ट ऑफ द यूनिट इन देयर पोर्टफोलियो. देन यू हैव टू डेवलप इंटरनली योर पोर्टफोलियो. ये क्लास 9 में वैसे आप कर चुके हैं, बट टॉपिक दे हैव गिवन द फिक्स्ड टॉपिक नाउ. This may be assessment on the internal assessment. The credit may be given to the periodic assessment or portfolio. This portion of unit is not to be assigned in a year-end examination. Management and natural resources, conservation and judicious use of the natural resources, forest and wildlife, coal and petroleum conservation, examples of the people that participate in conservation of the natural resources, big dams, advantages and limitations, alternatives if any, water harvesting, sustainability एंड द नेचुरल रिसोर्सेज. इसमें से कोई भी टीचर आपको किसी तरह का भी इंटरनल असेसमेंट वर्क आपको इसमें देंगी, लेकिन बोर्ड ने बेसिकली इसको इंक्लूड नहीं किया है, कोर पोर्शन में नहीं. यानी अगर फाइनल एग्जाम की मैं बात करूं तो फाइनल एग्जाम में इसमें से नहीं आएगा. Now the most important part. Now we'll study the topics the CBSE deleted from the NCERT book, or you can say from your syllabus for
2020 and 21. So students, you should focus. Now the topic I'll read will not study at all. The first topic they have deleted, the chemical substances, nature and behavior. No need to do. We will not do this topic at all. Next is the metal and non-metal, basic metallurgic processes, corrosion, iron prevention. We will not study. ये नहीं करना है हमें अभी. And आप ये देखो, the whole carbons compound except few basic things, they have deleted the whole thing. Carbons compound nomenclature, no need to do. Functional groups like halogen, alcohol, ketone, aldehyde, alkane, alkyne, difference between saturated and hydrocarbons, unsaturated hydrocarbons, nothing. इनमें से कोई टॉपिक भी आपको नहीं करना है बेटा. Chemical properties of carbon compound like combustion, oxidation, addition, substitution, ये कुछ नहीं करना है हमें. और इथेनॉल, एथेनोइक एसिड, only properties and uses we will not do. Soaps and detergents we will not do. तो अगर मैं कार्बन कंपाउंड के बारे में बात करूं तो कार्बन कंपाउंड का मेजर पोर्शन सीबीएसई ने आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया है. बेसिक, वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट दे हैव गिवन. तो अब चैप्टर बहुत ही छोटा हो गया है आपका उस हिसाब से. तो ये टॉपिक्स हमें नहीं करना है स्टूडेंट्स. नाउ नेक्स्ट, द वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर. वहां से क्या कट किया है तो ये मैं आपको ऐसे ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ. चैप्टर 2 कंप्लीटली कट कर दिया है. कार्बन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नहीं आ रहा है. तो वी विल नॉट डू दिस चैप्टर एट ऑल. व्हाट वाज देयर इन द कार्बन कंपाउंड? ट्रॉपिक मूवमेंट, introduction of plant hormones, control and coordination in animals, nervous system, voluntary involuntary reflex action, chemical coordination and animal hormones. ये कुछ हमें अभी control and coordination में नहीं करना है. Heredity and evolution में the basic concept of evolution they have chopped off last portion. I mean, now you will study about the Mendelian work only. Rest जो आपका evidences और आपका definition of this and the particular portion they have given the anatomical पैलेंटोलॉजिकल स्टडी, वो कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स. आपको सिंपल हेरिडिटी ही आपको पढ़ना है. अब इसके अंदर हेरिडिटी मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द मेंडेलियन वर्क, सिर्फ वो आपका इसके अंदर बचा हुआ है. अब बात करते हैं कि नेचुरल फिनोमिनन से क्या हटा दिया है. ह्यूमन आई, then the colorful words, the functioning and the lens, the human eye, defects of vision and their correction, application of the spherical mirror and lenses, ये सब हटा दिया है. यानी चैप्टर 2 से सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट आपका है. ह्यूमन आई का डायग्राम आपको नहीं करना है, डिफेक्ट्स आपको नहीं करने हैं और उसके आगे करेक्शंस भी आपको नहीं करने हैं. नाउ इफेक्ट्स ऑफ करंट से क्या हटाया है, यानी 4th यूनिट से उन्होंने क्या हटाया है हमारा. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से इलेक्ट्रिक जनरेटर आपको नहीं करना है. डायरेक्ट करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट, फ्रीक्वेंसी, एसी एंड एडवांटेज ऑफ एसी एंड डीसी, डोमेस्टिक सर्किट, ये लास्ट वाला जो पोर्शन था वो आपको नहीं ही करना है. इलेक्ट्रिक मोटर का भी प्रिंसिपल वहां पे सिर्फ दिया हुआ है, वो आपको करने की जरूरत है. जनरेटर प्रिंसिपल भी यानी कंप्लीटली आपके सिलेबस से हटा दिया है. तो हमें अब सिर्फ मोटर तक करना है. डेफिनेटली जनरेटर बेस्ड लॉ दिया है तो वो करना है, लेकिन उसके आगे डीसी, एसी, डोमेस्टिक सर्किट, ये हमें बिल्कुल भी यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है. अब बात करते हैं यूनिट 5 नेचुरल रिसोर्सेज की. अगर हम बात करते हैं तो सोर्स ऑफ एनर्जी, द डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी एंड फॉसिल फ्यूल, सोलर एनर्जी, बायोगैस, टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर पावर, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, ये पूरा ही चैप्टर है जो आपको अब करने की ज़रूरत नहीं है. तो स्टूडेंट्स अब आप यहाँ देखिए कि आपको चैप्टर 1 केमिस्ट्री में पूरा करना है, चैप्टर 2 आपको ऑलमोस्ट पूरा करना है. चैप्टर 3 में बेसिक मेटलर्जी, कोरोजन, ये वाला पोर्शन नहीं करना है. कार्बन कंपाउंड में बेसिक्स करने हैं, बाकी कुछ नहीं करना है. अब बात करते हैं हम आपका बायोलॉजी की. बायोलॉजी में चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेसेस कंप्लीट करना है. चैप्टर 2 नहीं करना है बेटा, ठीक है. फिर उसके बाद रिप्रोडक्शन कंप्लीट करना है, उसमें कुछ भी नहीं सीबीएसई ने कट किया है. देन उसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन. उसमें सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन जो सेकेंड हाफ ऑफ द था चैप्टर का, वो सीबीएसई ने पूरा कट कर दिया है.
नेचुरल फिनोमिनन्स की अगर मैं बात करूँ तो नेचुरल फिनोमिनन्स में आपको सिर्फ बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज यानी डिस्पर्जन ऑफ लाइट एंड एप्लीकेशन करना है। बाकी डिफेक्ट्स अबाउट ह्यूमन आई वो सब सीबीएसई ने डिलीट कर दिया, आपको नहीं करना है। इफेक्ट ऑफ करंट में मैग्नेटिक जनरेटर कंप्लीटली आपका हट गया है, तो जनरेटर बिल्कुल भी हमें करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लॉ हम बिल्कुल पढ़ के वहां तक छोड़ देंगे। और मोटर में पहले से ही मोटर का बहुत कंस्ट्रक्शन और आपके सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी उतना ही है, तो वही हम भी करेंगे मोटर करके। और उसके बाद सिर्फ आपका इंड्यूस करंट, नथिंग मोर देन दैट। जनरेटर के बारे में एसी डीसी डिफरेंस, डायरेक्ट करंट इनडायरेक्ट करंट में डिफरेंस, देन उसके बाद आपका एसी डीसी जनरेटर में डिफरेंस, डोमेस्टिक सर्किट एंड डिफरेंट वायर्स देयर कॉम्बिनेशंस, ये कुछ अब आपको नहीं करना है बेटा। नेचुरल रिसोर्सेज में द कंप्लीट सोर्स ऑफ एनर्जी भी आपको करने की जरूरत अब नहीं है। तो इन दैट वेज आप देखिए कि सिलेबस का एक बड़ा पोर्शन जो आपका है वो बिल्कुल हट गया है। आपको डेफिनेटली बहुत फोकस्ड होकर बेटा स्टडी करना है। तो नाउ दिस वाज ऑल अबाउट the revised syllabus issued by CBSE for session 2020 and 21 for science. In the next video, with the new information, something new will come released by CBSE or some authentic sources. I'll be there. I'll show you, I'll help you out what to do and how to do for the board preparation. Till then, all the best. Thank you.